So this is another screen from another book, which is showing us what? Which is showing us the enzymes, okay, the coenzyme part. So yesterday we discussed that coenzymes or cofactors are of three types: metallic cofactors, coenzymes, and your prosthetic group. तो उसमें एक्चुअली उसमें जो कोएंजाइम का कोएंजाइम है, मींस कोएंजाइम मेन हेडिंग का जो सब हेडिंग कोएंजाइम है वो ये है. ओके, so these are the names of coenzymes. Fine. So these are all names of coenzymes and these are how they are made. And this is an example. For example, nicotinamide adenine dinucleotide, NAD, NADH. इसमें हम और भी लिख सकते हैं. ओके, NADP, ओके, एंड NADPH. सो ये सब भी हम लोग लिख सकते हैं. तो इसलिए ऑल दीज थिंग्स, तो ये आपका दे आर यूजिंग व्हाट? विटामिन B3. तो उसका एग्जाम्पल एंजाइम कौन है? लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज. तो लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम यूजेस NADP एंड ऑल दीज थिंग्स. ओके, तो उस तरह से आपका पूरा टेबल है. एक बार अच्छे से जाके घर में इसको देख लेंगे. इसके रिलेटेड जो डिस्कशंस हैं, अगर कोई डाउट है हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे. लाइक बायोटीन, बायोटीन को बनाने के लिए हमें B7 चाहिए, है कि नहीं? तो जो B7 है, नाउ दिस B7 इज फाउंड इन पायरुवेट कार्बोक्सिलेज. तो वो क्या करता है? पायरुवेट में CO2 ऐड करता है एंड सो ऑन. ठीक है जी. तो ये आपके अलग अलग एंजाइम्स है. चलिए, सो दिस स्क्रीन वी विल सेव फॉर यू and we'll go ahead. Any doubts? Otherwise, we'll go ahead. Chaliye, so we will go to our next share. Okay, we'll go to our blackboard. Fine. So now, today we will discuss the scientific nomenclature. Okay, scientific nomenclature. Okay, तो जो हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे देसी नॉमेनक्लेचर या ट्रिवियल नॉमेनक्लेचर, today we will discuss the scientific nomenclature, or this is known as IUPAC. Okay, what is the full form of IUPAC? International Union for Pure and Applied Biochemistry. Okay, that is called IUPAC, और उसको हम लोग एंजाइम कमीशन नंबर भी कहते हैं. ओके, सो वी आल्सो कॉल इट एंजाइम कमीशन नंबर. क्लियर? चलिए, सो वी विल स्टार्ट दिस टॉपिक. इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो इसलिए ध्यान रहे. नाउ इन दिस टॉपिक, तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? ऑल एंजाइम्स यूज ए suffix. Okay, is. All enzymes use a suffix is. तो कोई भी एंजाइम्स होगा उसके पीछे एक नाम लगेगा is. ठीक है, तो ये आप याद रहेंगे. Now every enzyme is assigned a 4-digit number. Okay, every enzyme is assigned a 4-digit number in such a manner that two different enzymes do not have all the 4 digits same. ठीक है, at least the 4th digit will be different. ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोई दो अलग अलग टू डिफरेंट एंजाइम्स डू नॉट हैव ऑल द 4 डिजिट सेम. कम से कम आपका 4th डिजिट अलग होगा.
So this is very important point. Now, if two different enzymes are having all four digits same, that means that they are actually the same enzyme. Okay, they are actually the same enzyme. ठीक है, अगर कोई ट्रिवियली काम कर रहा है, वो उस एंजाइम को कुछ बोलता है, तुम उस एंजाइम को कुछ बोलते हो, बट अगर उसका चारों डिजिट सेम है, इसका मतलब एक्चुअली वो एंजाइम सेम है, वो डिफरेंट नहीं हो सकता. ओके, सो दिस इज द कंसेप्ट. नाउ द फर्स्ट digit of the four-digit number decides the class of the enzyme. Okay, so the first digit of the four-digit number decides the class of the enzyme. ठीक है, तो वो एंजाइम क्या करता है, ये उसको डिसाइड करता है. ठीक है, सो दैट इज वाई अब हम इसको देखेंगे. तो इंस्टेड ऑफ टाइपिंग वी विल ट्राई टू शेयर अ स्क्रीन. Okay, so now let's try to see the screen here. Okay, let us see the screen. तो क्या ना फिर पूरा टाइप करना पड़ेगा. तो now actually the enzymes, they are divided into 6 different classes. Okay, nahi? Now these 6 different classes, they are using the what Roman numbering. तो आप जब क्लास लिखेंगे तो आप रोमन नंबरिंग करेंगे, बट जब आप उसके बारे में नंबर लिखेंगे, सो यू विल यूज व्हाट, यू विल यूज ग्रीक लेटर्स. ठीक है, तो आर यू एबल टू सी द स्क्रीन? आई विल रीशेयर. Yes, sir. Yes, sir. तो ये आपका स्क्रीन है, ध्यान दीजिए. So now let me highlight that box. So this is the box we want to see, and these are the 6 classes of enzymes. Now what is the technical problem? You see, when books do the mistake, so the technical problem is they have written in Greek alphabets, but we will not write in Greek alphabets. We will use Roman numbers as a part of the rule. Now the first enzyme, okay, तो जो पहला एंजाइम है, we will use Roman 1. Okay, so the first enzyme, the first class of enzymes is referred to as oxidoreductase. ठीक है, so what are oxidoreductases? They perform oxidation reduction reaction. Now what is oxidation and reduction? Gain in hydrogen, loss, gain in Loss hydrogen of is hydrogen. reduction, loss in Reduction. hydrogen is oxidation, Oxidation. gain in oxygen is oxidation, loss of oxygen is reduction, Reduction. gain in electrons is reduction, loss in electrons is oxidation, and so on. तो ये सब आपका अलग अलग पाथवेज है, रिएक्शंस है. सो दैट इज कॉल्ड योर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन. ठीक है, तो इसीलिए आपका जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन करेगा, उन एंजाइम को हम क्या कह देंगे, ऑक्सीडो रिडक्टेजेस. उसका एग्जांपल्स क्या आ गया, जो ग्रुप्स, ऑक्सीडेजेस, डिहाइड्रोजिनेजेस, हाइड्रोजिनेजेस. ओके, जो हाइड्रोजिनेज है वो भी एक क्या है, इस कैटेगरी का एंजाइम है, हाइड्रोजिनेजेस. ओके, so these are all different types of what, oxidoreductases. उसमें एक एग्जाम्पल हम लिखेंगे. here we will write
1:1:1:1. ठीक है, so this is the name of alcohol, dehydrogenase. ठीक है, now you understand how do we write these names? तो 1111 दुनिया में कहीं भी जाके मांगोगे तो वो आपको क्या देगा? अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, एंड उसका ऑफिशियल शॉर्टकट है, ओके, दैट इज ADH. फाइन, तो अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज का ऑफिशियल शॉर्टकट इज ADH. ओके, तो इस तरह से आपके बहुत सारे एंजाइम्स होंगे, वो हम थोड़े बाद में डिस्कस करेंगे, आफ्टर वी डिस्कस द 6 क्लासेस. सो आउट ऑफ दीज 4 नंबर्स, आपका सिलेबस में एक ही नंबर है, तो आप सिर्फ उसको ध्यान देंगे. कौन सा नंबर? फर्स्ट नंबर, है कि नहीं? तो ये फर्स्ट नंबर क्या डिसाइड करता है? क्लास ऑफ द एंजाइम. समझ रहे हो? तो आम सिलेबस रे एटा ही देइची, आमे एटा को ही ध्यान देबा. मैं आपको एक एंजाइम का एग्जांपल लेके समझा दूंगा, बट अदरवाइज यू विल ओनली लुक एट द फर्स्ट नंबर. ठीक है, तो फर्स्ट नंबर इज 1, तो इट इंडिकेट्स व्हाट? इफ फर्स्ट नंबर इज 1, इट इंडिकेट्स ऑक्सीडोरिडक्टेस. ठीक है. Okay, so this is the concept of oxidoreductase enzyme. ठीक है, now जो second category है, that is called transferases. तो transferase क्या करेगा? They transfer groups from one carbon to another. Okay, या from one compound to another. ठीक है, तो इसलिए ये लोग ट्रांसफर करते हैं. तो इसीलिए उसका एक एग्जाम्पल है, ओके, दैट्स अ ब्यूटीफुल एग्जाम्पल 2711. ओके, सो दिस इज नोन एज PFK, या इसको पेस मेकर ऑफ ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं. ओके, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड पेस मेकर ऑफ ग्लाइकोलाइसिस. इसका नाम क्या है? फॉस्फो फ्रुक्टोकाइनेज. ओके, तो फॉस्फो फ्रुक्टोकाइनेज ये करता क्या है? ट्रांसफर्स PI from ATP to fructose 6 phosphate. ओके, तो जब हम लोग ग्लाइकोलाइसिस रिएक्शन पढ़ेंगे, आपका एक रिएक्शन होता है, ओके, दैट इज कॉल्ड ATP प्लस फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट विल बिकम फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट. तो इसमें who is transferring the phosphate group? It is transferred by PFK. Understand? तो that is why उस एंजाइम का नंबर क्या हो गया? 2711. Okay, so any 2711 is a PFK. तो अब how did you know? From the 2, है कि नहीं? तो 2 क्या इंडिकेट करता है? 2 indicates transferase. Clear? Third category of enzymes are called hydrolases. So what are hydrolases? They break bonds by adding water. Okay, so they break bonds, okay, CC bond, CO bond, CN bond, and other bonds by means other than oxidation. Okay, नहीं, इसमें हम लोग 3 डिस्कस कर रहे हैं. फॉर्मेशन ऑफ 2 प्रोडक्ट्स बाय हाइड्रोलाइजिंग ए सबस्ट्रेट. तो हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या है? ब्रेकिंग कंपाउंड्स बाय एडिंग वाटर. तो इधर हम लिख सकते हैं, ओके, ब्रेकिंग कंपाउंड्स बाय एडिंग वाटर. तो दैट इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस. ठीक है, तो दे ब्रेक कंपाउंड्स बाय एडिंग वाटर. ठीक है,
तो इसमें आपके सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स आ जाएंगे। तो एग्जाम्पल, ऑल डाइजेस्टिव एंजाइम्स ऑफ आवर बॉडी। ये जब, यहाँ तो जगह नहीं है, ये जब हम लोग ब्लैक बोर्ड में जाएंगे वहां करेंगे, ठीक है, उसका हम लोग एग्जांपल्स देखेंगे। तो ऑल डाइजेस्टिव एंजाइम्स ऑफ आवर बॉडी विल कम इन हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा लाएज। तो लाएज इज आल्सो ब्रेकिंग, बट अदर देन, ये आपका हाईलाइट करना जरूरी है। So what are liases? They will also break bonds by means other than hydrolysis या ऑक्सीडेशन। ना तो ये हाइड्रोलाइज करेंगे, ना ही ये ऑक्सीडाइज करेंगे, बट स्टिल दे विल ब्रेक कंपाउंड्स, ठीक है। नाउ इसका एक और भी काम है, वो हम लोग लिख लेते हैं। ओके, दे ऑल्सो हेल्प in the formation of C double bond C. Okay, so also known as desmolases, ठीक है। तो ये आपका, इनको डेस्मोलेजेस भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये आपका डबल बॉन्ड भी बनाते हैं हमारे बॉडी में। सो दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग डबल बॉन्ड, ठीक है। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ लाइजेस। इसमें एग्जांपल आपका डिकार्बोक्सिलेज, कार्बोक्सिलेज आ जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज आइसोमरेज। तो आइसोमरेज, यू नो, दे विल प्रोड्यूस आइसोमर्स। तो कैन एनीबॉडी टेल व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एन आइसोमर? बोलो, आइसोमर का डेफिनेशन क्या आ जाएगा? बी फास्ट। What is the definition of an isomer? The same molecular So formula basically but different formula same arithmetic होगा, structure. structure अलग होगा, अलग होगा. Yes, means the structural formula is different, but the molecular formula is same. So जो enzyme आपका isomers बनाएगा, they are called isomerases, ठीक है। उसमें एग्जाम्पल म्यूटेज, आइसोमरेज, एपिमरेज ऐसे आ जाएंगे, ठीक है। लास्ट ग्रुप इज, तो इसलिए हम लोग इसको भी अब भूल गए लिखना। तो ये आपका हम लोग दिखेंगे क्या, 2, फाइन, सो वी विल जस्ट राइट इट। इधर लिखेंगे हम लोग 3। तो यहाँ आपको रोमन में लिखना है, अंदर आपको ग्रीक में लिखना है, ठीक है। तो इधर यू विल हैव टू राइट इन रोमन अल्फाबेट्स। सो दिस इज योर 4, ठीक है, एंड this is your 5. तो आइसोमरेजेस आर 5। एंड जो लाइगेज है, लाइगेज का एक और नाम सिंथेटेज भी होगा। यू कैन ऑल्सो कॉल इट सिंथेटेजेस, ओके। सो वी कैन ऑल्सो कॉल इट सिंथेटेज, ठीक है। तो ये लोग क्या करेंगे? सो दे फॉर्म बॉन्ड्स। जिस तरह लाइज, हाइड्रोलाइज ब्रेक बॉन्ड्स, तो सिंथेटेज क्या है? ये फॉर्म बॉन्ड्स, ओके। सो दिस इज द कंसेप्ट, ओके। तो अभी हम लोग यहां से जाएंगे अपने कॉपी में एंड वहां इसको समझने का कोशिश करेंगे, ओके। कुछ पूछना है तो पूछो, नहीं तो हम लोग आगे चले। ओके, हाँ We can बोलो। proceed, sir. हाँ चलिए, सो वी विल गो टू द फर्स्ट टाइप। सर हाँ बोलो। सर वो जो 4 डिजिट होता है उसमें से अदर जो 3 होता है वो किसके लिए होता है? वो आपके, refer करते हैं? दैट इज नॉट इन योर सिलेबस, वो मैं आपको समझाऊंगा, बट आपको वो याद रखने का जरूरत नहीं है। वो आपका मैकेनिज्म, सब मैकेनिज्म, सब मैकेनिज्म को डिसाइड करता है कि नहीं।
चला मैं पढ़ी बा, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड, उसका कोई बेसिक हेडिंग नहीं है। सर एक बार फिर से वो पहला वाला पेज थोड़ा टर्न कर सकते हैं, एक सेकंड। कौन सा? सर जस्ट प्रीवियस वन वी वर राइटिंग द टेबल। दिस वन? हाँ बोलो। यस सर, थैंक यू। चलो, सो यू डोंट नीड टू टेक शॉट्स, वो तो मैं ही स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ। चलिए, सर वहाँ पे लाइगेज में जो एटीपी क्लीवेज लिखा था उसका मतलब क्या है? वो इसको एटीपी चाहिए होगा, है कि नहीं? आपको जोड़ने के लिए भी एनर्जी चाहिए। ओके, वो हम यहाँ पढ़ेंगे अगेन, डोंट वरी। एक्चुअली यहाँ बहुत फैल जाएगा, तो इसलिए पहले मैंने आपको सुंघाया है। सी व्हाट आई हैव टोल्ड यू ऑलवेज बिफोर कमिंग टू क्लास, ऑलवेज रीड एनसीईआरटी। तो आपने मिनिमम पढ़ लिया, उसके बाद आपके पास जो इधर उधर का बुक्स है वो पढ़ लो। तो आपने थोड़ा ज्यादा पढ़ लिया, इधर मैं बम मार दूंगा, वो आपके लिए ज्यादा हो जाएगा। फिर उसको पढ़ेंगे अच्छे से, फिर घर जाके फिर कोई छोटा सा बुक पढ़ेंगे, फिर एनसीईआरटी पढ़ेंगे एंड फिर प्रैक्टिस करेंगे। तो इसलिए बिफोर क्लास एंड आफ्टर क्लास आपको क्वेश्चनिंग चाहिए। इधर मैं बम मारूंगा, इधर हम वन का ही 2-3 पेज पढ़ेंगे, समझ रहे हो? इसीलिए मैंने पहले आपको बेबी पिक्चर दिखाया। अब जेजेस इज अ फैट मैन, आपको फैट पिक्चर दिखाएगा, समझ रहे हो? तो इसलिए व्हाट इज द नेम, फर्स्ट कैटेगरी बोलिए। ऑक्सीडो रिडक्टेजेस, है कि नहीं? ऑक्सीडो reductases. Okay, so what they do? They catalyze oxidation. ये कैप्स हो जाता है। They catalyze oxidation and reduction reactions like, okay, oxidation and reduction reactions like plus H2 minus H2 plus O2 minus O2 plus electrons, okay, minus electrons, okay। तो ये इस सब को हम लोग क्या कहते हैं? दीज आर ऑल ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। तो ये हमारा क्या हो गया? दिस इज बेसिकली द हेडिंग। अब ये आपका क्लास 1 हुआ। अब हम आगे इसका बात करेंगे क्लास 2, क्लास 3 एंड एटसेट्रा। तो दैट इज द सब क्लासेस, ठीक है? तो जो अब हम लोग जो सब क्लासेस डिस्कस करेंगे, तो उसका जो सबसे पहला सब क्लास है दैट इज 1:1, ठीक है? तो व्हाट इज 1:1? तो अब हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे 1:1। तो एंजाइम कमीशन 1:1 मतलब क्या है? एक्टिंग ऑन द CHOH ग्रुप डोनर्स, ठीक है? तो जो आपका CHOH ग्रुप डोनर्स पे काम करेगा वो एक्चुअली क्या हो गया? सो दैट इज कॉल्ड योर व्हाट? 1:1। तो इसमें आपके काफी सारे एग्जाम्पल्स हैं, फाइन, जिसमें हम लोग 1-2 पढ़ेंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, लाइक वी हैव ऑलरेडी रेड द एग्जांपल ऑफ अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, है कि नहीं? तो हमने ऑलरेडी इसका एग्जाम्पल पढ़ा है, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, है कि नहीं? उसका 1:1:1:1 है। उसी तरह से आपके ऐसे काफी सारे डिहाइड्रोजिनेसेस होंगे। कोई और डिहाइड्रोजिनेज आप जानते हो? बोलो। लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज सुने हो, जो लैक्टिक एसिड बनाता है। ओके, सो लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज का फॉर्मूला क्या है? 1:1:1:28, ठीक है? सो दैट इज द नेम ऑफ लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। उसी तरह से आपके बहुत सारे डिहाइड्रोजिनेज हो जाएंगे, फाइन। आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, ये आपका कहाँ यूज होता है? क्रेब्स साइकिल में, ठीक है?
तो ये आप लिख सकते हो 1:1:1:41 इज योर आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, तो इस तरह से ये जो सारे एंजाइम्स हैं दे आर बेसिकली व्हाट एक्टिंग ऑन CHOH ग्रुप। क्लियर? सो ये आपका ऐसे काफी सारे एंजाइम्स आपके होंगे जो उसके ऊपर काम करेंगे। चलो अब इसका एक सबसेट देख लेते हैं। सर व्हाट इज 1:1:1? बिकॉज यू आर आस्किंग सर व्हाई द थर्ड डिजिट, तो इसीलिए इन सब में 1:1:1 है थर्ड डिजिट। तो नाउ व्हाट इज 1:1:1 बाबा, उसको देख लिया जाए, है कि नहीं? तो वी विल चेंज कलर। नाउ 1:1:1 का मतलब क्या है? जो NADP या NADP को एक्सेप्टर की तरह यूज करता है। जो हम हाइड्रोजन निकालेंगे उसको NAD या NADP लेगा, तो दैट इज कॉल्ड 1:1:1। बुझ गया? तो इन सब में हु विल टेक द हाइड्रोजन? NAD और NADP। बुझला? तो ये उसका सब कैटेगरी हो गया। अब आप बोलोगे सर 1:1, हाँ बोलो। सर जितने हमारे ये 4 डिजिट्स होते हैं ये सारे के सारे रोमन्स में होते हैं या सिर्फ फर्स्ट वाला जो क्लास वाला है वो रोमन में? सुनो, आपको सिर्फ क्या करना है, आपको सिर्फ एक ही डिजिट समझना है। ओके, तो इसीलिए व्हाट आर यू आस्किंग आद्या, प्लीज बी मोर क्लियर। सर जो क्लास के बाद के जो 3 डिजिट्स है वो रोमन में लिखना है या नंबर में? कुछ भी रोमन में नहीं लिखना है। मैंने आपको क्या बोला? टेबल को रोमन में लिखना है, इनको रोमन में नहीं लिखना है। तो समझ रहे हो? तो इसीलिए 1:1 का मीनिंग क्या है? एक्टिंग ऑन CHOH ग्रुप। अब 1:1:1 माने वो NADP NAD उसका हाइड्रोजन एक्सेप्टर है। 2 कब लगेगा? जब साइटोक्रोम को आप हाइड्रोजन देंगे। 3 कब लगेगा? जब ऑक्सीजन को आप हाइड्रोजन देंगे। 4 कब लगेगा? जब डाइसल्फाइड को आप हाइड्रोजन देंगे, एंड सो ऑन। तो ये एक बहुत लंबा लिस्ट है, ये आपको जानने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप स्पेशली रिसर्च करेंगे एंजाइम पे, उस केस में आपको ये चाहिए, अदरवाइज इसके बारे में जानने का आपको कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, सो यू डोंट नीड दीज एंजाइम्स, बट सिंस यू आर यूजिंग एग्जाम्पल, तो हम लोग एग्जाम्पल लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर जैसे अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज जो है वो एक एंजाइम हमने यूज किया, तो उसका एक वेरिएशन हम यहाँ स्टडी करेंगे। तो आप देखिए ये जो 1:1:1:2 है उसका एग्जाम्पल क्या है? सो ये आपका आ गया एक एग्जाम्पल। ना इधर देखिए ये 1:1:1 2:8 है, इसका भी नाम अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज है, बट ये किसको दे रहा है हाइड्रोजन? साइटोक्रोम C को। तो देख रहे हो, तो अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज कोई साइंटिफिक नेम नहीं है, ये एक कॉमन नेम है। बट 1:1:1:1 किसको बोलेंगे? जिसने NAD को दिया। ओके, एंड 1:1:2:8 किसको बोलेंगे? जिसने साइटोक्रोम C को दिया। ओके, इसको यहाँ नहीं, ये इधर लिखेंगे इसका एग्जाम्पल, ये आएगा इधर। ओके, यहाँ उसका एग्जाम्पल आएगा। तो अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज का एग्जाम्पल किधर आएगा? इसको हम यहाँ से काट के इधर ले आते हैं। ये सारे ही तो 1:1:1 है ना, तो ये सारे हम काट के इधर ले आते हैं। फाइन, सो लेट अस ब्रिंग इट हियर। फाइन, तो ये सब इस 1:1:1:1 के नीचे डाल देंगे। ठीक है, आ गया समझ? तो ये सारे 1:1:1 वाले आ गए। ओके, तो ऑल आर 1:1:1 1:1:1 1:1:1, बट ये 1:1:2।
ओके, तो ये उसका डिफरेंस है। क्लियर? उसी तरह 1:3:1 का एग्जाम्पल है कोलेस्ट्रॉल ऑक्सीडेज। ऐसे काफी सारे हैं, आप लिस्ट देखोगे तो समझ में आएगा। ठीक है, तो हम लोग एक एक लिख देंगे बस नाम। आपको ये कुछ भी याद रखने का जरूरत नहीं है, सिर्फ समझने के लिए मैंने ये सब किया हुआ है। तो 1:1:3:6, तो ये कोलेस्ट्रॉल ऑक्सीडेज है। तो ये किसको देता है इलेक्ट्रॉन? ऑक्सीजन को। अंडरस्टैंड? उसी तरह जो सल्फर जो है डाइसल्फाइड वाला, तो उसका जो है हम लोग एग्जाम्पल लिख सकते हैं। ऐसे तो बथेरे हैं। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ योर व्हाट 1:1। अगर 1:2 लगा दोगे तो फिर ये एक और कैटेगरी हो जाएगा। ठीक है, सो इफ वी पुट 1:2, तो इसको हम नेक्स्ट पेज में चले जाएंगे, यहाँ जगह नहीं होगा। फाइन, तो ये आपका 1:2 आ गया। ठीक है, तो 1:2 में जो आपका जो लिस्ट है उसमें जो मेन रीजन क्या है? 1:2। सो दे ओके, सो ये आपका है 1:2 का मेन हेडिंग। ओके, ये सब आप उसको डिलीट कर दो। ये नंबरिंग है एक्चुअली, हम लोग इसको एक लाइनअप में ले आएंगे ना। ये सब क्या है ये आप देख रहे हैं। सो ये आपका 1:2 है, माने व्हेन 1 के बाद 2 लगता है एक्टिंग ऑन एल्डिहाइड और ऑक्सो ग्रुप। ऑक्सो कौन सा ग्रुप है याद है? ऑक्सो कीटोन, तो दैट इज ए कीटोन ग्रुप। तो कीटोन ग्रुप जब लगाओगे उसमें आपका आ जाएगा ऑक्सो ग्रुप। तो उसमें आपके एग्जाम्पल्स आ जाएंगे। सपोज हम लोग गैल-3p डिहाइड्रोजिनेज, ये आपका जो एंजाइम है ये यूज होता है किधर? इन केस ऑफ ग्लिसरल जो ग्लाइकोलाइसिस। तो यहाँ हम एक एंजाइम लिखेंगे 1:2:1:9। ओके, सो दिस इज ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। ये हमारा ग्लाइकोलाइसिस में ये एंजाइम यूज होगा। अंडरस्टूड? तो इसीलिए ये उसका एग्जाम्पल है। उसी तरह से अगर आपको 1:2:2 का यूज करना है तो पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज ले जाएंगे, वो एक बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल है। ओके, पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज 1:2:2:2। ठीक है, उसी तरह सपोज आप ऑक्सीजन एक्सेप्टर यूज करना चाहते हो, माने ये लिस्ट इज एंडलेस है कि नहीं। तो आपको सिर्फ कोई एक चीज याद रखना है, सपोज पाइरुवेट ऑक्सीडेज। ठीक है, तो आपका पाइरुवेट ऑक्सीडेज आ जाएगा क्या? 1:2:3:3 एंड सो ऑन, है ना। तो इस तरह से आपके अलग अलग एंजाइम हैं। इसका ईसी नंबर 1:2 है, तो इसलिए इसको हम ज्यादा पढ़ेंगे नहीं, ऐसे आपका सीरीज में होगा। ठीक है, अब हम लोग चले जाएंगे 2 कैटेगरी पे। फाइन, सो नाउ 2 कैटेगरी में हमने क्या पढ़ा था? बोलो, ट्रांसफरेज, है कि नहीं? इन द 2 कैटेगरी वी हैड रेड अबाउट ट्रांसफरेजेस। तो इसलिए ट्रांसफरेजेस में आपके अलग अलग तरीके का ग्रुप ट्रांसफर होगा। फाइन, सो इफ यू सी 2, आपके अलग अलग तरीके के ग्रुप ट्रांसफर्स होंगे। लाइक हम लोग लिख सकते हैं, सपोज ये सारे लिख लो, इसको कलर चेंज करेंगे। दिस इज 2 ट्रांसफरेजेस। तो ये उसका लिस्ट आ गया आपका। ठीक है, सो दिस इज द लिस्ट, दिस इज 2:1। ओके, ये आपका
2:1 आ गया। तो 2:1 क्या है? ट्रांसफरिंग 1 कार्बन ग्रुप, तो उसमें आपका आ जाएगा मिथाइल ट्रांसफरेजेस। 2:1:2 हाइड्रोक्सी मिथाइल फॉर्मिल रिलेटेड ट्रांसफरेजेस। 2:1:3 कार्बोक्सी कार्बामोइल ट्रांसफरेजेस। ओके, ये उस तरह से ये आपके अलग अलग हेडिंग्स है। फाइन, तो इसमें आप क्या देख रहे हो? तो ये एमिडिनो ट्रांसफरेज है, ट्रांसफरिंग एल्डिहाइड कीटोनिक ग्रुप्स, ट्रांस कीटोलेज ट्रांस एल्डोलेज। इसका एक बहुत खूबसूरत एग्जांपल आपका है, हम लोग उसको लिख लेंगे। जो ट्रांस एल्डोलेज ट्रांस कीटोलेज है उसका एक ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम है हमारे पास, तो उसका हम लोग एग्जांपल लिख लेंगे। उसका सिंपल जो नेम है उसको हम लोग वहां भी ट्रांस एल्डोलेज ही कहते हैं। ओके, ये कौन सा रिएक्शन है ग्लाइकोलिसिस का मालूम है? आप लोग तो ग्लाइकोलिसिस